یہ ہمارا مقصد ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنی اس مقصد سے السلام علیکم۔ آج یہاں پر پاکستانی کمیونٹی جو ڈنمارک میں ہے، کوپن ہیگن میں، وہ عمران خان اور طاہر القادری صاحب کے جو دھرنے میں ظلم و ستم جو حکومت کر رہی ہے، ان کے اوپر تشدد کر رہی ہے، اس کے حوالے سے احتجاج کے سلسلے میں لوگ جمع ہیں، اور یہ کسی بھی دنیا کے جمہوری ملک میں احتجاج کرنے کا ہر کسی کو حق حاصل ہے، لیکن پاکستان میں ایک عجیب قسم کی جمہوریت ہے کہ جس میں جمہوریت کے نام پر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، پولیس کا ایک فورس بنا کے، جیسے پچھلے زمانوں میں محاذ رائی کر کے باقاعدہ حملہ کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ اٹیک کیا جاتا ہے، جیسے پہلے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا افسوسناک 17 جون کو، اور پولیس کو جو ہے بلا جواز پرامن اور سوئے ہوئے لوگوں کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہاں پر عورتیں سمیت لوگوں کے اوپر تشدد کیا، لوگوں کو گولیاں ماری، 80-90 کے قریب لوگوں کو جو ہے نا گولیاں لگی، جن میں سے 14 کے قریب شہید ہوئے، اور اس کے بعد جو اسلام آباد میں پرامن احتجاج کرنا، دنیا کے ہر ملک میں ہر جمہوری معاشرے میں پرامن احتجاج کرنا لوگوں کا حق ہے۔ اکٹھے ہوئے ہیں، ظلم کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں جمہوریت کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور عمران صاحب اور قادری صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ ملک کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں۔ ڈنمارک میں جمہوریت ہے، یہاں ہر آدمی کو انصاف مل رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں انصاف ہو، ہم صرف پاکستان میں نہیں چاہتے، ہم پوری دنیا میں چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم تجھے سلوٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہم تجھے سلوٹ کرتے ہیں، عمران خان صاحب تجھے سلوٹ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو سلوٹ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ان لوگوں کو سلوٹ کرتے ہیں جن کے سفید بال، مائیں بہنیں بچے، جن کو درندگی دہشتگردی کے طریقے کے ساتھ ان کو چھلنی کیا گیا ہے۔ کتنے ڈاکٹر، کتنے عمران شہید کرو گے؟ ہر گھر میں بچہ پیدا ہو گئے جیسے قدیر خان جیسے پیدا ہو گئے ہیں، کیا کرو گے تم؟ اب تیرا بھر اپنا انصاف اور اپنا عدل ہم اسی پارلیمنٹ کے سامنے تجھ سے لیں گے، اور آپ کو کہتے ہیں کہ چلا جا۔ اگر ہمارے ڈاکٹر صاحب کو، عمران خان میرے بھائی کو، اگر ایک بال بھی باقا ہوا، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، محلے بھی تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ گو نواز گو، 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 گو نواز گو۔ پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے کوپن ہیگن میں پاکستانی عوامی تحریک اور پاکستانی تحریک انصاف، آج سارے لوگ مسلمان یہاں ڈنمارک کی جمع ہوئے ہیں، جو پاکستان میں ظلم و ستم جو گورنمنٹ جو ہے وہ کر رہی ہے، اتنی زیادتی، ایک پیسفل جو ہے ڈیمونسٹریشن وہاں پہ ہو رہی ہے، اتنے دنوں سے یہ پرامن لوگ وہاں پہ باہر پرامن دھرنا دے رہے ہیں، اور جو حکومت نے زیادتیاں، ظلم اور قتل جتنے کر رہے ہیں اس کی مذمت کے لیے آج ہم پاکستانی ایمبیسی کوپن ہیگن میں تمام مسلمان پاکستانی عوامی تحریک اور پاکستانی تحریک انصاف کے لوگ آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اس لیے پیغام دینے کے لیے کہ ہم سب پرامن لوگ ہیں اور ہمارا پرامن احتجاج ہے۔ ہم 18 کروڑ عوام کے لیے پرامن احتجاج کرنے کے لیے اور ان کو حق دلانے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ نواز شریف تم درندے ہو، تم قاتل ہو، تم لٹیرے ہو، تم نے ابھی تو یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ ابھی تو پرسوں کی بات ہے، تم نے پھر ہمارے بہن بھائیوں کو قتل کر دیا۔ تم جس اسمبلی میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہو، یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ جو دولت تم نے اکٹھی کی ہے، یہ سب سے بڑا ہمارے سامنے منظر ہے کہ یہ لوٹ گھسوٹ سے تم دولت اپنے گھر لے گئے ہو۔ یہ ہمارے بہن بھائیوں کا حق تھا جو آج وہاں کھڑے ہیں، لیکن نواز شریف اور تمہارے یہ ساتھی یہ سن لیں، میرا قائد کہتا ہے کہ تبدیلی آ گئی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تبدیلی آ گئی ہے۔ گو نواز کو، گو نواز کو، گو نواز کو، گو نواز کو،
नवाज शरीफ सुन लो कि झूठी कहानियां सुनाकर और इन गुल्लू बट्टों की ये तुम्हारी जो अपनी पैदावार है, इनके सहारे कभी ये पुलिस बन जाती है, कभी ये तुम्हारे साथी बन जाते हैं। ये कितनी कितनी जगह तुम अपने आप को सेव करोगे इनके सहारे से। तुम टूट चुके हो, तुम खत्म हो चुके हो, तुम्हारा ज़मीर मुर्दा है, तुम इंसान नहीं रहे, तुम मुसलमान भी नहीं रहे। जो जुल्म ज़्यादतियां तुमने पाकिस्तान के अंदर की हैं, इनका अब तुम्हें हिसाब देना होगा। और इन्हीं गलियों में जिधर हमारे बहन भाई खड़े हैं, वहां तुम्हें आकर, अब मैं वो लफ्ज तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि तुम्हें इंसाफ के कटहरे में जाना पड़ेगा। और ये जो कल के पैदा किए तुम्हारे साथी, जो पहले से 2 नंबरी करते रहे तुम्हारी तरह, मैं तो जानता था कि तुम्हारी तरह ये भी 2 नंबर है। मैं तो जानता हूं चौधरी निसार भी 2 नंबर है। मैं तो जानता हूं ये 2 ख्वाजे कितने झूठे हैं। ये बार बार जो लोगों को कहानियां सुनाते हैं, ये कितनी देर कहानियां ऐसी सुनाई जाएंगी। ये बंदा जिसकी कीमत बहुत ही थोड़ी है, मेरे चाचा जी यहाँ खड़े, मैं बूढ़े वाले का हूँ, मैं मुल्तान के नजदीक का हूँ, मैं जुवेद हाशमी तुम्हें जानता हूँ, मैं जेल में बिल्कुल गया था तुम्हें मिलने। वो एक गलती थी मेरी, जिसने नवाज शरीफ के साथ इतनी देर रहने की गलती की, मुझे माफ करेंगे मेरे बहन भाई। इसीलिए मैं जानता हूं कि तुम्हारे ज़मीर की कीमत, याद करो एक ताहिर नाम के बंदे को जिसे तुमने वादा किया था एमपीए की टिकट देने का। तुम उसके साथ वादा करके 10 लाख रुपए रिसीव करके चले गए, लाहौर का चक्कर लगाया, तो जुवेद हाशमी तुम वापस आए, तो फिर क्या हुआ? फिर तुम्हें, एक मिनट यार, फिर तुम्हें क्या हुआ? तुम बड़ी जल्दी, क्योंकि तुम्हें पीछे से फोन आने लग गए, तुम्हारी कीमत बढ़ गई टिकट देने की। ये मैं पीटीआई की टिकट की बात कर रहा हूँ, ये पिछले इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी कीमत थोड़ी सी जब बढ़ गई, तुम्हारी लेने की कीमत जब बढ़ गई, तो तुमने उसको धक्का दे दिया जिसने सारी उम्र तुम्हारा साथ दिया, वो ताहिर, तुम उसे छोड़ गए और तुमने 1 करोड़ रुपया वसूल करके कहा, तुमने ये सुन लो मेरे पीटीआई वालों, कहा तुमने ये कि ये पार्टी फंड में जाएगा, लेकिन वो पैसा भी तुम्हारे घर गया। तुमने यही सीखा नवाज शरीफ से, और यही किया नवाज शरीफ ने कि इस मुल्क को लूटा, बार बार लूटा। और अब क्या होगा? गो नवाज गो। मेरे बहन भाइयों, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तब्दीली पाकिस्तान में आ चुकी है। माशाल्लाह यहाँ पर छोटे बच्चों के जज्बात अगर देखें, तरी साहब को अजब रस्म है करते हैं। गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को, गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। अजीज़ान ग्रामी कद, कायदीन कारकुनान व जानिसारान तहरीक मिनहाजुल कुरान व पाकिस्तान अवामी तहरीक और कायदीन कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदगान, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर मौजूद हैं और फरमाते हैं कि ताजदारे कायनात ने फरमाया, अगर तुम किसी जालिम को जुल्म करता देखो और उस जालिम को जुल्म करने से ना रोको, तो तुम उस वक्त का इंतज़ार करो जब जुल्म तुम पर भी बरसेगा और जब क़यामत खुदा की तुम पर भी बरसेगी। अजीज़ान ग्रामी कद, इस वक्त ये हाल हमारी मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान का है जाएगा, यानी कि बल्दियाती इंतखाबात करवा जाएंगे, मगर
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद बल्दियाती इलेक्शन न करवाए जा सके। आर्टिकल 47 कहता है समाजी इंसाफ का फरोग और समाजी बुराइयों का खात्मा होगा, मगर पाकिस्तान को इंसाफ के कटहरे में न लाया गया। मगर दूसरी तरफ रायविंड के महल्लात में देखते हैं एक मोर अगर मर जाए तो 21 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया जाता है। अवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, अवाम खुदसोजियां करने पर मजबूर हैं। कहीं 4 बच्चों का बाप अपने 4 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी करने पर मजबूर है। बेटियां इंसाफ न मिलने के बावजूद पार्लियामेंट के सामने अपने आप को आग लगाने पर मजबूर हैं। बच्चे हैं जिसमें हर जालिम के हाथ को काटा जाए और मजलूम को इंसाफ फराहम किया जाए, जिसमें सानिया इस्लामाबाद वालों को कटहरे में लाकर फांसी के दीवानों में लटकाया जा सके। सानिया मॉडल टाउन में 100 लोगों को डायरेक्ट बुलेट फायर करके उनको अपनी तरफ से शहीद किया गया, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोगों को महफूज रखा। 14 लोगों ने जामे शहादत नोश किया, मगर आज तक FIR लोट न हो सकी। मैं बताना चाहूँगा हम उस आइन को मानते हैं और हम क्या चाहते हैं कि रोशनियों का नगर आबाद होना चाहिए, रोशनियों का एक नगर जिंदाबाद, जिंदाबाद, कादरी साहब जिंदाबाद, कादरी साहब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं आपको सबको सबसे पहले सलाम पेश करता हूं और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आज आए हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता जाऊं ज़ैन कादरी साहब की। जैसे कि दूसरे इन पार्टी के लोगों की झूठ पकड़े जाते हैं, ये भी बिल्कुल झूठे आदमी हैं। हमने इनको लिख कर दिया था प्रूफ, यहाँ के एम्बेसी के अंदर MRP फैसिलिटी लगनी चाहिए डिजिटल पासपोर्ट की। इन्होंने बताया था कि मैं अगर ये काम ना आपका करवाऊं तो मैं सैयद नहीं हूं। इन्होंने उधर जाकर काम करवाने की तो दूर की बात है, हमें जवाब तक नहीं दिया था। ये इस तरह के आदमी हैं, ये सब के सब झूठे हैं। चाहे वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हो या हजरत कायद आजम और मोहतरमा फातिमा जिना हो, आज भी अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी के इनकलाब और इमरान खान साहब की आज़ादी की जंग में खवातीन अपने बुजुर्गों, भाइयों और बेटों के साथ शाना बशाना खड़ी हैं और हर तरह की कुर्बानी के लिए वो तैयार हैं। आज जिस तरह के जालिम हुक्मरानों से हमारा वास्ता है, तारीख इंसानी में ऐसे जालिम, सफाक और दरिंदा सिफ्त हुक्मरान शायद ही कभी देखे हों। जब हम फिरौन और यजीद की बर्बरियत को देखते हैं तो वो हर जुल्म करते थे, मगर खवातीन पर और बच्चों पर उन्होंने कभी हाथ नहीं उठाया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि सानेह मॉडल टाउन लाहौर का वाक़या हो या सानेह इस्लामाबाद का नहिती मासूम खवातीन का वाक़या हो, इन पर वो न सिर्फ जुल्म और ज्यादती करते हैं बल्कि इन्हें शहीद तक कर देते हैं। और बाद उनके दरिंदा सिफ्त पुलिस के लोग खवातीन को गाड़ियों में उठाकर ले जाते हैं और न जाने उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। और लाहौर के ये एक शायर ने, पता नहीं वो पढ़ा लिखा है या नहीं, लेकिन बड़ी काम की उसने बात की है। उसने बड़े काम की बात की है। कहते सन खुशहाली आसी, पंजाबी में है मियां मनीर साहब, कहते सन खुशहाली आसी हर चेहरे ते लाली आसी, कहते सन खुशहाली आसी हर चेहरे ते लाली आसी। टैक्स रोजाना तुन्नी जाते गंजे नू भी मुंडी जाते, टैक्स रोजाना तुन्नी जाते गंजे नू भी मुन्नी जाते। अगू जड़ा जड़ा शेर वो जालम शेर थे। टैक्स रोजाना तुन्नी जाते गंजे नू भी मुन्नी जाते, माचस हो गई तेरा दी, बोलो सारे जीरे जोड़ी शेरा थे। जाट साहब, चौधरी फैज़ल भाई साहब, उनकी तरफ से मुबारकबाद पेश करूंगा कि जैसा आपने पाकिस्तान में जो करके दिखा दिया है वो मैं इसमें मुझे कहते हैं कोई हार महसूस नहीं हुई। मेरी पार्टी समेत कोई पार्टी भी
इन दोनों पार्टियों के अलावा पाकिस्तान में जो आपने कर दिखाया है वो करने के कोई भी काबिल नहीं है। और मैं आप सबको इसकी मुबारकबाद पेश करने यहाँ पे आया हूँ और अपनी पार्टी का यहाँ पे पार्टी की नुमाइंदगी भी कर रहा हूँ। और मैं आपसे एक गुजारिश ये करूँगा कि मुझे ये पूरा यकीन है कि आप अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे और आप कायम रहेंगे जब तक हम इन दो मुनाफिक जो हैं, जो जालिम हैं, जिन्होंने ये दिखा दिया है कि उनके पास उनको ना कोई उनमें गैरत है, ना उनमें इज्जत है, ना उनमें औरतों का ख्याल है। अब देखें, दुनिया में आज तक आपने नहीं देखा होगा कि औरतों के ऊपर, खसूसन मर्दों को छोड़ के औरतों के ऊपर जो है शेलिंग की गई है। और वो भी उन्होंने की है जिनको आप उल्लू पाट का नाम दे सकते हैं। वो सिविल कपड़ों में लोग थे, औरतों के अंदर घुस के उन्होंने शेलिंग की है ताकि औरतों को नुकसान पहुंचाया जाए और मर्द जो है वो औरतों की बिजी हो जाएं और हम अपना काम कर सके। लेकिन आप लोगों ने और हमने भी आपका जितना हम साथ दे सकते थे पाकिस्तान में दे रहे हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अपने सदर चौधरी शौकत साहब की तरफ से और अपनी तरफ से कि हम आपके साथ हैं। जहाँ हम आप आवाज देंगे हम आपके शाना बिशाना खड़े होंगे। और आपने बिल्कुल, हम इंशाअल्लाह इन दोनों को यहाँ से पाकिस्तान से निकाल कर, और ये जो जुर्म इन्होंने किया है इंशाअल्लाह पैट वाले और पीटीआई वाले, और हम आपके साथ हैं। जहाँ भी आप हमें आवाज देंगे हम आपके शाना बिशाना खड़े होंगे और इन्हें हम इंशाअल्लाह ताला इनको इन पाकिस्तान के किसी चौक में इन दोनों भाइयों को फांसी की सजा होगी। और ये मुझे यकीन है कि ये अब भाग के कहीं भी नहीं जा सकेंगे। सऊदी अरब ने इनकार कर दिया है कि हम आपके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। यूरोपियन ममालिक ने इनकार कर दिया है कि आप यहाँ भाग कर नहीं आ सकते। तो अब इंशाअल्लाह ये पहले तो ये रो कर एक दिन सिर्फ इनको मक्खी और मच्छर ने काटा था और रो पड़े थे ये जो आज बड़े लीडर बने हुए हैं। आज तक कोई लीडर, भुट्टो, मैं सलाम पेश करता हूँ उनको, सियासी आपका इख्तिलाफ भी हो, उन्होंने जरदारी ने जेल में 8-8, 9-9 साल गुजारे, वो नहीं रोए। ये एक रात नवाज शरीफ साहब जो पहलवान अपने आप को समझते हैं, एक रात सिर्फ वो जेल में रहे थे, बल्कि हवालात में रहे थे। तो उन्होंने सऊदी अरब के पास जाकर रोना शुरू कर दिया और मुशर्रफ साहब के पांव में बैठकर उनको कहा कि जो मर्जी आप लिखवा लें, हमें यहाँ से जाने दें। हम सब साफियों को दिल की गहराइयों से दुआ भी देते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और खुदा गवाह रहेगा कि ये जो लोग हक की आवाज़ को उठाने के लिए हमारे साथ चले, ये उन शुहदाओं के साथ कम नहीं है जो मॉडल टाउन में शहीद हुए। उसके अलावा दीगर जो जुल्म हुए, उन साथियों का हम शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ासकर मुबशर लुकमान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।